रसमय हो जा मधुकर मन। नमस्कार। प्रोफेसर चैतन्य जी, रावल मैडम, मोडासाथी इंट्रोडक्शन आपनार मित्र અને સૌ પાર્ટિસિપન્ટ્સ, પ્રાધ્યાપક મિત્રો, વિદ્યાર્થીઓ, એનએસએસ ની એક્ટિવિટી સાથે રાજ્યના એડવાઇઝરી બોર્ડ મેમ્બર તરીકે પણ એક નાતો રહ્યો છેલ્લા 6 વર્ષથી. ત્યારે એક જ વાક્ય બોલીને મારે પૂરું કરવાનું હોય. ગુજરાતી વિલ બી કમ્ફર્ટેબલ, નો? હેલો. યસ સર, યસ સર. યા, એક જ વાક્ય સર, શ્યોર. એક જ વાક્ય બોલીને મારું વક્તવ્ય પૂરું કરવાનું હોય તો એક જ વાત છે, સેવા અને તે વ્યક્તિ રાષ્ટ્ર કા પ્રાણ है. I strongly believe in NSS, NCC, Scout Guide. They are institutes which has created રાષ્ટ્રીય ભાવ among the students. આજે બધા ફોટોગ્રાફ્સ જે ઉપર છે, 7 ફોટોગ્રાફ છે, બધા જ ડોક્ટર, નર્સ, ઇન્ટર્ન ડોક્ટર, ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ છે કે જે લોકોએ કોંગો વાયરસની સારવાર કરતા કરતા પોતાના જાન નશાવા કર્યા છે. આ એ લોકો છે. આ મારા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કહેવામાં આવ્યું કે કોવિડ તો હમણાં આવ્યો, પણ કોંગો, ઝિકા અને બર્ડ ફ્લુમાં મને ભગવાને માધ્યમ બનાવ્યો દેશમાં પહેલી વખત કામ કરવાનો. એની 7-8 ડિઝીઝની ગાઈડલાઈન લખવાનો મોકો મળ્યો. અને હું જે સમજો છું એ બધી વાતો વિદ્યાર્થીઓ આગળ વહેંચવી છે. ત્યારે લાઈફ માટે સ્વામી વિવેકાનંદ કહેતા, એક્સપાન્શન ઇઝ લાઈફ, કન્સ્ટ્રિક્શન ઇઝ ડેથ. વિસ્તાર એ જીવન છે, સંકુચિતતા મૃત્યુ છે. આપણા સૌના જીવનમાં આ વ્યાપક ભાવના, આખો વિશ્વ મારું છે, હું આખા વિશ્વને પ્રેમ કરું છું, કોઈને દ્વેષ કરતો નથી. આ વાતો ઇન ધીસ ફોર્મ ઓફ એક્સપાન્શન ઓફ લાઈફ કરતા રહીએ અને જાતને ઘડતા રહીએ. રોજ રાત્રે આપણે બધા એનએસએસના બધા સ્કાર્ફ પહેરીએ છીએ, તો વગલ કાઢતી વખતે રોજ જાતને પ્રશ્ન પૂછીએ, આજે હું ગઈકાલ કરતા બહેતર થયો કે કેમ? આજે હું રાષ્ટ્રને અર્પણ કરાયું કોઈ મેં કામ કર્યું કે કેમ? આજે હું જાત ઉપર ગૌરવ લઈ શકું એવું મેં કામ કર્યું કેમ? આવી કેટલીક વાતો પેન્ડેમિક મેનેજમેન્ટની સાથે કરવી છે. આપણે ડાર્વિનની થિયરીમાં માનીએ, 4 પગો માણી પહેલા હોમોસેપિયન્સ થયો, હોમોસેપિયન્સ બન્યો, પછી કપડા પહેરતો થયો. એટલે પહેલા વલ્કર પહેર્યા, પછી કમ્પ્લીટ મેન રેમન્ડ્સ આવ્યું. અરે ભાઈ, કપડાથી નહીં, કેરેક્ટર મેક્સ મેન પરફેક્ટ. એ પછી સુપરમેન આવ્યા. આ મેન અને સુપરમેનમાં શું ફરક છે? અંદરના કપડા બહાર પહેરીને સુપરમેન કહેવાય. હા, આ સુપરમેનના પાછા લગન થયા. સુપરમેનના લગન થયા તો આમ ધાબે દોરડી પકડીને બેઠું ઉભો હોય, પાછી પેલી કે ખરી સહી પકડે હે. હા, તો ભલભલા સુપરમેનને આમ ધાબે કપડા સુકવતા દેખ્યા છે. ત્યારે જીવનમાં કોઈ ગમે બોલો ના, ત્યાંથી પછી અબોલા થાય. એમ કરતા કરતા જીવન આગળ વધે ત્યારે આગલા સ્ટેજમાં ક્યાં બોલા એમ પાછી લડે પણ ખરી. ભલભલા સુપરમેનના સ્ટેજ અમે જોયા છે. ત્યારે આ 21મી સદીના કેવા માણસો હશે? આ જે રીતે ઉત્ક્રાંતિ થઈ રહી છે, ત્યારે માણસ અને પ્રાણીના પણ સ્વરૂપો સમાજમાં હોય, જલચરમાં હોય તો નવાય નહીં એવું જોવાઈ રહ્યું છે. આ મી માઇન્ડ વાળી પેઢી. હેલો, એક્સક્યુઝ મી સર, થોડું હિન્દી ઇન્વાઇટ કરશું કારણ અમુક પાર્ટિસિપન્ટ્સ અધર્સ સ્પીકના છે. રિક્વેસ્ટ ટુ યુ સર. ધીમેથી બોલું ને? ના, हिंदी सर, थोड़ो हिंदी मिक्स कर, बीजा स्टेटना भी पार्टिसिपेंट्स છે. मैं 5G से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है. मी माइंड वाली पीढ़ी है. आप देख सकते हैं ये अपर पोर्शन में कान के पीछे सॉकेट लेके जन्म लेने वाले लोग अभी पैदा होने वाले हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ. जन्म के साथ ही प्लग एंड प्ले, ऐसी 4G के साथ हम बात कर रहे हैं. आज लोग वर्चुअल प्यार में मानते हैं, शाश्वत प्रेम में नहीं मानते हैं. हाँ, जादू की जप्पी हमें पता है. कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते भी विचारों में खो जाते हैं. तो
आज हम दूध भी वर्जिल पीते हैं और गाय को चश्मा पहनाते हैं। ऐसी 5G की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं बच्चा था तब जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, आज ये 5G के सामने यदि मैं गाना गाऊं, भजन गाऊंगा, बात वही गाऊंगा, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, राजा राम। क्योंकि इस राम राज्य को, मुझे राम राज्य की बात करनी है, बाद में वही करूंगा पर अपनी स्टाइल में करूंगा। ये आपने चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफिया, पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ, गुड़िया, खिलौने, सारी सहेलियां, अब मुझे लगती है सारी पहेलियां, ये कौन सा मोड़ है उम्र का। कॉलेज का पहला साल मतलब टीनेज खत्म और युवा की शुरुआत। हम स्कूल में बिल्कुल डिसिप्लिन से, कॉलेज में आ गए तो हमारी पोजीशन चेंज हो गई, हमारे बाल बन गए, दाढ़ी बढ़ गई। स्कूल में B+ आता था तो भी टेंशन था, यहाँ C+ भी आ गया तो हम एंजॉय करते हैं। फ्री बुक, हमारे पूरे NSS के सब कोऑर्डिनेटर, PO सब काम करे, फ्री बुक के लिए हम पैसा लेके आए यूनिवर्सिटी से, तो वहां भीड़ नहीं है और फ्री वाईफाई में भीड़ लगी हुई है। साइकिल का ठिकाना ही और मोटर बाइक आ जाती है, और किसी पे पीछे पे बैठ गया तो हमें इसमें ये राइट साइड के दर्शन होते हैं। हमें ये जिंदगी है, हॉस्टल लाइफ है, उधार की जिंदगी है। हेयर ऑयल 111 नंबर में से, शर्ट 102 नंबर का, और बेल्ट है वो 104 नंबर का, और पैंट 116 नंबर का। ऐसी हमारी जिंदगी हॉस्टल कटती है। मित्र यार मिलते हैं। ये बेटे का रूम तो इतना अच्छा साफ सुथरा होता है, पर हमारे लड़कों का रूम देखो, सब बैठे हैं अपनी मस्ती में बैठे हैं। हम जब पढ़ते थे तो ये हालत था, अकेली लड़की की बहुत चॉइस थी, आज तो आधी आधी बेटियां भी पढ़ने लगी है। बात है जीवन में पढ़ाई करते हैं, फिर काम करते हैं, काम करते करते हम हेल्थ केयर वर्कर की बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर में से लोग हीरो बन गए। ये जो इबोला का जो 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 डॉक्टर बच गया उसका फोटो है, था एक डॉक्टर पूरा इंटरनेशनली इबोला में से बाहर आ गया तो हीरो बन गया। कुछ इस तरह से हम भी, ये मेरी राइट साइड में जो फोटो है वो चैतन्य साहब है, वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, और हम दोनों साथ में कोविड जीनोमिक्स पे काम कर रहे हैं। और ये ऋषि बनता है। मैं, जो बच्चे गांधीनगर में रहते हैं, अहमदाबाद के आसपास रहते हैं, उस सबको GBRC में जाना चाहिए। गांधीनगर में डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बिल्डिंग में 6th फ्लोर पे बिल्डिंग है, लैब देखनी चाहिए। जो भी साइंस वाले बच्चे भी, सब मैकेनिक्स डिपार्टमेंट के वाले बच्चे हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं बायोमेडिकल की बातें आती है तो जाके देखना चाहिए, मैं मानता हूँ। आज ऋषियों के देश हैं, और ऋषि आज ऐसे मॉडर्न हो गए, हम जानते हैं सब मॉडर्न ऋषि को, पर दिल में भाव बड़ा है तो आप बिल्कुल आप ऋषि ही हैं। ये जानते हो ये बच्चा कौन है, बीच वाला बच्चा कौन है, नहीं पहचान पाओगे। अभी इसको देखोगे या ये सिद्धू साहब है, पहचान पाओगे क्या? मैं क्यों बता रहा हूँ, लाइफ इज फुल ऑफ कंफ्यूजन, और हमारे सिद्धू साहब कुछ कंफ्यूजन से गुजरे, इसलिए मैंने उनका फोटो रखा है। लाइफ कंफ्यूजन है। एडोलेसेंट से हम एडल्ट बन गए, कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आ गए, और कोविड आ गया, और आप में से कुछ लोग तो 12th में भी कोविड में फंसे हुए होंगे। तो कुछ कैओस था, कहाँ जाएंगे पता नहीं, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। एक ग्रुप वाले तो इंजीनियरिंग जाएंगे, पर इंजीनियरिंग में कहाँ जाएंगे, मैकेनिक्स में जाएंगे या और कोई ब्रांच मिलेगी, पता नहीं था। सब जगह पे देखो आपको ट्रैफिक जाम मिलता है। इन एवरी ब्रांच, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सब जगह पे ट्रैफिक जाम मिलता है। आगे क्या करेंगे? इसके पीछे सभी के जो कारण है वो डॉटेड डेस्टिनी है। हमने 1-2 डॉट ब्लैक गलत कर दिए, हमारा लाइफ का ट्रैक चेंज हो गया। पर मैं एक बात मानता हूं, ये पूरे देश में जहां जहां साधु देखते हैं, जहां जहां कोई प्रचारक देखते हैं, जहां जहां कोई संत देखते हैं, तो उसमें इंजीनियर ज्यादा मिलते हैं, डॉक्टर कम मिलते हैं। ये मैं एज ए प्रोफेसर मेडिसिन में बोल रहा हूं। जीवन क्या है? कुछ बातें कैओस ना हो, कैओस में से एक अच्छी एक फिगर बने, डिजाइन बने, हमारा जीवन में कुछ नियमितता आए। एक्सपांशन ऑफ लाइफ शुड बी इन दिस वे। कुछ बातें ऑर्डर में आए, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। यदि हम कैओस में हैं तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। यदि हम डिजाइन में हैं, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ
साथ में काम करते हैं, वी कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशंस। ये बात है, ये मेरी हॉस्पिटल की बात है। हमारी 110 एकड़ की हॉस्पिटल है। मैं इनवाइट करता हूँ सब लोग को, आप आइए, हमारी हॉस्पिटल देखनी चाहिए। हमारे वहाँ 7400 बेड है, उसमें से हमने 3000 बेड लगाए थे। हमारे कोविड के लिए लगाए थे, आधे बेड लगाए थे, जिसका मैं इंचार्ज रहा। हमारा लाइट बिल हर महीने का 1 करोड़ रुपीस आता है। हम ये संस्था से हैं। थिंक बिग एंड सपने भी बड़ा देखते हैं, तब जाके हम मैनेज कर पाते हैं। मेरे पास 350 वेंटिलेटर एंड 100 डायलिसिस मशीन के साथ हमने पूरा कोविड मैनेजमेंट किया। तो इसके पीछे ये बड़ा सोचना, आज मेरे पास एक साथ में 2000 पेशेंट भी आ जाए तो मेरी मानसिकता भी है और मेरे सर्वेंट की भी मानसिकता है कि आई कैन मैनेज 2000 केसेस। तो ये जो बात है, बृहद भाव है, हाउ कैन यू कैन एडजस्ट डिजास्टर, हाउ यू कैन कोप अप द एनी क्राइसिस, एनी चैलेंज, एंड दैट इज अ बेसिक थिंग इन अवर मैनेजमेंट। ये सर्दी खांसी तो हम वर्षों से देखते हैं, हम खुद ने भी महसूस किया है। तो नया क्या है, ये इन्फ्लुएंजा, फिर कोविड, कुछ न कुछ नया, ये सब वायरसेस है। कोरोना वायरस है या इन्फ्लुएंजा वायरस है। आज कोविड कम हो रहा है, फिर से इन्फ्लुएंजा आज गुजरात में बढ़ रहा है। तो क्या है, ऑल ऑफ देम। मैं पिछले 200 साल का इतिहास बोल सकता हूँ। लास्ट 200 साल में 10 महामारी मतलब पैंडेमिक, 10 महामारी आई है। पूरे विश्व में 6 कॉन्टिनेंट है। जब 2 कॉन्टिनेंट से ज्यादा कॉन्टिनेंट में एक साथ कोई नया वायरस मिलता है, नया जंतु मिलता है, नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, तब उसको पैंडेमिक बोलते हैं, महामारी बोलते हैं। तो ऐसे पिछले 200 साल में ऐसे 10 महामारी आई है। मुझे सौभाग्य मिला, हमने पूरे गुजरात में लॉकडाउन भारत से 3 दिन पहले लगाया। और जो 8 सीएम रूपाणी साहब थे, नितिन भाई थे, कैलाशनाथन साहब थे, हम पूरे 8 लोग की टीम थी। उसमें एज ए डॉक्टर मैं वहां बोला था हमें लॉकडाउन क्यों लगाना चाहिए। 200 साल में जितनी भी महामारी आई उसमें बहने का मृत्यु और बहने में केसेस ज्यादा होता है, क्योंकि जो वायरस रेस्पिरेटरी बॉर्न है, सर्दी खांसी से फैलता है, सर्दी जुकाम से फैलता है, वो सभी वायरसेस में बच्चे वेक्टर है। बच्चे में डेथ नहीं है, बच्चे वेक्टर है। पूरे विश्व में कोई भी बच्चा हो, चल के स्कूल जाता है, दौड़ के घर आता है और माँ को गले लगता है। तो ये बच्चों की मेंटालिटी है। इसलिए कोई भी नया वायरस आए, नया तो जो रेस्पिरेटरी बॉर्न है उसमें माता का मरना और बहनों का मरना और केसेस, वो दोनों मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी बोथ आर हाई। ये क्या है, कोई भी वायरस है, ये जूनोटिक इन्फेक्शन है, मतलब प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर, रोडेंट, ये सभी में वायरस फैल सकता है और वहां डिजीज कर सकता है और वहां टिकता है। और एक्सीडेंटली यदि ऐसा वायरस ये चामाचिड़िया में से इंसान में आ गया, ऐसा एक वायरस इंसान में आ गया हमारे वुहान शहर में, और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ, फिर वो पूरे विश्व में गया, प्लेन से गया और अनेक लोगों को हमने कोविड में देखा। तो पहले कोई रिजर्वर होता है, उसमें से एक्सीडेंटल स्प्रेड ह्यूमन में होता है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन छोटा होता है। पहले वुहान में हुआ, तब देश में शांति थी, हमारे यहाँ तो 2 महीने के बाद आया था। तो पहले लोकल स्प्रेड होता है, फिर प्लेन, जहाज, माइग्रेटरी बर्ड्स उसको विश्व में ले जाते हैं और इसको बोलते हैं पैंडेमिक, व्हेन क्रॉसिंग मोर देन 2 कॉन्टिनेंट्स। ये पिछले 200 साल में जो महामारी आई उसमें सबसे ज्यादा जो डेंजरस था वो 1918 उसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। ये फ्लू 1914 से 17 तक विश्व युद्ध प्रथम चला। उसके बाद उस वक्त ब्रिटेन का सूरज बुलंदी पे था, भारत भी परतंत्र था। भारत जैसे 70 से ज्यादा कंट्री में से सोल्जर ब्रिटिश सोल्जर बन के वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए थे। 17 में युद्ध खत्म हुआ, वो वापस निकले अपने देश गए। उन लोगों ने उस वक्त पे वो महामारी पैंडेमिक फैलाया एंड दैट वाज स्पेनिश फ्लू। आप गूगल में टाइप करना स्पेनिश फ्लू क्या है, उसकी बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी। स्पेन में आया, एक्चुअली केस फ्रांस में आया था, पर फ्रांस में प्रेस मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, इसीलिए सबसे पहला रिपोर्ट किया गया स्पेन में, इसलिए उसको स्पेनिश फ्लू बोलते हैं। ये जो वायरस है वो 5.5 से 6 करोड़ लोग मर गए और एक लेटेस्ट कैलकुलेशन तो बोलता है कि 8 से 9 करोड़ लोग वो महामारी में मर गए। वायसरॉय गुजरात की मुलाकात में आते हैं और एलिजाबेथ क्वीन को कागज लिखते हैं, नर्मदा रिवर मुझे होड़ी में क्रॉस करते करते
4 घंटे लगे बिकॉज नर्मदा रिवर वॉज फुल ऑफ डेड बॉडीज। कोई जलाने वाला नहीं था, कोई दफनाने वाला नहीं था, लोगों ने नदियों में शव को बहा दिया, एंड दैट वाज स्पेनिश फ्लू। ये गांधी जी के बेटे की बहू का भी, उसमें गुलाब का बहन का भी डेथ हुआ था। और ये जो स्पेनिश फ्लू चला, ये सब उस वक्त पे इंडोर स्टेडियम में पेशेंट को रखना पड़ा, सब कॉट फुल थे, लोग मर रहे थे, हर घंटे पे एक बंदा मर रहा था। वो दैट वाज 1918 स्पेनिश फ्लू। उसके 100 साल होने वाले थे 2018 में। तो मुझे 2003 में भारत में से हम 3 डॉक्टर ट्रेन हुए 2003 में। WHO ने हमें ट्रेनिंग दिया, और जस्ट टू प्रिपेयर, क्योंकि 100 साल होने वाले थे स्पेनिश फ्लू के 2018 में, उसका ट्रेनिंग हमें 15 साल पहले। वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2003 टू डील विद दिस पैंडेमिक। कुल मिला के जितने भी 1407 इतने इन्फेक्शन कॉमन पैथोजन है जो इंसान में रोग करते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। तो ये 1400 के ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है, उसमें से 75% इन्फेक्शन आर जूनोटिक। इसका मतलब ये प्राणी, पशु, पक्षी, जड़तर का कंबाइंड ऑर्गेनिजम्स है, जो कहीं ना कहीं पलता रहता है, एक्सीडेंटली इंसान में आता है और फिर फैलता है। 2 बात है। जूनोसिस का मतलब प्राणी, पशु, पक्षी में से इंसान में आए, उसको जूनोसिस बोलते हैं। एंड रिवर्स इज, जिब्रा क्रॉसिंग के ऊपर इंसान चलता है तो उसको जूनोसिस बोलते हैं। ह्यूमन क्रॉसिंग के ऊपर यदि जिब्रा चलेगा, रिवर्स मतलब इंसान में से एनिमल को जाएगा इन्फेक्शन, तो उसको रिवर्स जूनोसिस या हम एंथ्रोपोसिस बोलते हैं। आज मनुष्य में से स्वाइन में, मनुष्य में से टाइगर में, आपने सुना होगा हैदराबाद में 7-8 टाइगर मर गए थे। हमारे यहाँ भी कुछ पंखियों का डेथ, कुछ एनिमल्स का डेथ की बातें चल रही थी। तो इंसान में से भी एनिमल को इन्फेक्शन लग सकता है, और कंफर्म भी हुआ है। आज मैं जब से मैं ट्रेन हुआ, पिछले 20 साल से मैं वन हेल्थ पे काम करता हूँ। वन हेल्थ मतलब यदि प्राणी, पशु, पक्षी, जलचर और दूसरा एनवायरमेंट, यदि वो दोनों सही नहीं है, वो क्लियर नहीं है, वो क्लीन नहीं है, तो इंसान कभी तंदुरुस्त रह ही सकता नहीं। इंसान को निरामय रहने के लिए पशु, पक्षी, जलचर और एनवायरमेंट का भी क्लीन होना बहुत जरूरी है। ये बात हमें याद रखनी है। इसलिए जो भी एनिमल अपने देश की रक्षा करते हुए अपना प्राण देते हैं, ऐसे जानवर को भी मैं नमस्कार करता हूँ। चाइना की बात करें, ये जो डॉक्टर था जिनका डेथ हो चुका, आज तक चाइना में आज जो चामा चिड़िया जिसको हम बोलते हैं, तो जो वेजिटेबल वाले जो हैं, ये फ्रूट बैट बोलते हैं हम उसको, तो बैट्स में आज तक 500 कोरोना वायरस मिल चुके हैं, 3 निकले हैं, 497 बाकी है, आने वाले हैं अगले सालों में। हर 10 साल पे, हर 40 साल पे ऐसे आउटब्रेक आते रहते हैं। जी हम समझ रहे हैं, इस बार वैक्सीन से कंट्रोल किया, आत्मनिर्भर वैक्सीन से कंट्रोल किया। अगला मौका आएगा जब इंजेक्टेबल के बदले हम नेजल वैक्सीन बनाएंगे, फास्ट बनाएंगे, और इससे भी कम मोर्टालिटी के साथ हम बाहर आएंगे। ये वायरस रेस्पिरेटरी बॉर्न है, हम ज्यादा इसके बारे में मैं सिम्टम में नहीं जाता हूँ, पर सर्दी, जुकाम, डायरिया ये स्वाइन फ्लू में भी होता है, कोविड में भी होता है। डॉक्टर को तय करने दो क्या करना है। हेडेक, बॉडी एक गले तक रहता है। आज पूरे गुजरात में वैक्सीनेशन का दर इतना अच्छा है, जिन लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं लिया उनको विनती है वो ले लीजिए। बाकी एक बार वैक्सीन दे दिया गया, एक बार 2 डोज चले गए, एक बार कोविड हो चुका, तो फिर दूसरी बार, और आज 2022 में भी कोविड हो सकता है, पर वो गले तक रहेगा, नीचे फेफड़े में नीचे जाएगा नहीं, निमोनिया नहीं होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पास जो मेरी 1200 बेड की हॉस्पिटल है, वहां हम देखते हैं जो दर्दी अभी कोविड लेके आते हैं, वो सब में कहीं ना कहीं वैक्सीन न ली गई, ऐसा हमें दिखा जाता है। वायरस कहाँ मिलता है? खून में नहीं मिलता है। वायरस जो सर्दी खांसी है तो वहां देखना पड़ता है। आजकल मंकी पॉक्स की बात चल रही है, तो मंकी पॉक्स में स्किन डिजीज होते हैं, तो मंकी पॉक्स का वायरस स्किन के जो ब्लिस्टर होते हैं उसमें दिखाई पड़ता है। तो जहां जहां सिम्टम्स है वहां हमें वायरस को ढूंढना पड़ता है। यदि खून में वायरस बहुत कम रहता है तो जहां जहां वायरस मतलब लीजन, वहां से हमें देखना पड़ता है।
ये सब एक्सरे और सीटी स्कैन से हम पता चलता है न्यूमोनिया कैसा है। जब पहले आया वायरस तब हमारे पास कुछ नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई एंटीवायरल नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई एंटीबायोटिक से कोई रोल नहीं है। पूरे देश में हम 13 डॉक्टरों ने गाइडलाइन लिखा, गुजरात में से मैं था और मुझे सौभाग्य मिला कोविड की गाइडलाइन में कंट्रीब्यूट करने का। बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट की गाइडलाइन लिखी, उसमें भी मैंने जो डॉक्यूमेंट गुजरात में बनाया, पूरा डॉक्यूमेंट भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, मेरा नाम भी लिखा है। ये बातें मैं इसलिए युवा को बोलना चाहता हूं कि हमें जब कुछ करते हैं तो मेरी आप फर्स्ट टाइम में देखते होंगे शास्त्र बुद्धा, नीचे लिखा है रणयोद्धा। इसका मतलब हम इतना अच्छा पढ़े, इतना अच्छा जीवन रणभूमि है, लड़ना पड़ता है, कोविड के सामने लड़ना पड़ता है, कभी कभी ऑफिसर के सामने लड़ना पड़ता है, व्यवस्था के सामने लड़ना पड़ता है, हम सोल्जर हैं। तो हम इतना अच्छा नॉलेज ले, मैं कुछ बातों में जब मैं ड्रग पॉलिसी रखा बहुत सारा फेस किया, ये दवाई को रखो, निकालो, इसको फिर से ऐड करो, बहुत सारी बाधाएं आती है। ये सब में से उभर के मैं बाहर खड़ा हूँ, सब जगह पे काम लगा। मैं भी स्काउट, बॉय स्काउट था, मुझे बॉय स्काउट की डिसिप्लिन काम आई है, क्योंकि मैं भी मर सकता था जब पहले वैक्सीन नहीं थी, पहले सिर्फ पीपी के सहारे काम करना पड़ता था। अहमदाबाद में मई महीने में 44 डिग्री टेम्परेचर में जब काम करता था तब पीपी पहनते थे, प्लास्टिक की पीपी थी, पूरा N95 का डबल मास्क पहनते थे, पेशेंट को ऑस्कल्टेट करने जाते थे। तो एक बार हमारा सांस बंद करके ऑस्कल्टेट करते थे, फिर दूर गए, सांस लिया, फिर वापस आके ऑस्कल्ट करते थे। बचना था और बचाना था, दो बात थी, शास्त्र बोधा, रणयोद्धा। तो ये जीवन युद्ध है। ऐसे कोविड में हमें बहुत सारा अनुभव हुआ। और एक बात सही है, जो मुझे स्काउट गाइड ने दिया, अनुशासन जो मुझे मिला, वो मुझे काम आया। मेरी वाइफ भी प्रोफेसर है मेडिसिन में, हम दोनों काम कर रहे हैं। बच्चों को हमने 3 महीने तक हाथ नहीं लगाया था सर के ऊपर, और हॉस्पिटल में कमरा ले लिया था, वहां से ही सब पेशेंट देखते थे। जीवन में एक अच्छा काम करने का मौका मिला और परिस्थिति के सामने लड़ने का भी मौका मिला। और दूसरा वाक्य में लिखा है, क्षमता से अधिक कार्य करें। मैं हर एनएसएस के कार्यकर्ता को बोलता हूं, हमारा जीवन ऐसा अच्छा बने, हम क्षमता से अधिक कार्य करें और दिव्यता का प्रकटीकरण करें। मैं ध्यान किया था, ये कोई बड़प्पन की बात नहीं है, मैं शिव हूं, ऐसी बात लेके चलना पड़ता था, क्योंकि आसपास में जो लोग मर रहे थे, तब जाके उनके घर वाले, हमने 300-350 डेड बॉडी ऐसी हमने जलाई, जहां सगे बेटे थे तो भी उनको आने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कोविड में मरने का डर था। ऐसे वक्त में मेरे पास, मैं अपने मोबाइल में के साथ वो जो प्लास्टिक बैग में तुलसी पन्ना लेके चलता था, और मेरी हाजिरी में डेथ हुआ तो उसके मुख में मैं तुलसी पन्ना रखता था। भगवान, तुलसी में विष्णु का वास होता है और भगवान इसका कल्याण करना। जब हमारे पास कुछ नहीं है तो प्रार्थना तो है ना, हम ये करते थे। क्षमता से अधिक कार्य करें और दिव्यता का प्रकटीकरण करना हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। बात चली, वुहान से बात चली, तब मास्क की बात आई। गांव में भी लोग पता भी नहीं चले तो भी अक्सर देखते थे, इसमें क्या है, पूछते थे। तो ये जो कोविड की बातें आई, सबसे पहले कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस है, ये वायरस आरएनए वायरस है। सबसे पहले वायरस 1960 में ह्यूमन में पाया गया। तब तक वो सिर्फ आंखें लाल करता था, सर्दी जुकाम डायरिया, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस, कोई स्टेरॉइड नहीं, कोई रेमडेसिविर नहीं, कोई टोसिलिजुमैब नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, कुछ नहीं। 40 साल तक ये वायरस सिर्फ गले तक रहा, और 2003 में ये वायरस सबसे पहले नीचे उतरा, गले से नीचे फेफड़े में उतरा। आप ये जो देख रहे हैं, ये जो ग्रेफ्स जैसा जो दिख रहे हैं, वो जो है जहां हमारा ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज होता है, वो फेफड़े का हिस्सा है। पहली बार गले में से वायरस नीचे उतरा 2003 में, और नाम आया उसका सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस। ये वायरस 2003 में आया और 10% मोर्टालिटी। तब मैं ट्रेन हुआ, हम देश के 3 फिजिशियन ट्रेन हुए, मैं तब से काम कर रहा हूं, मैं तब से जगा हुआ हूं और मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर केसेस, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, क्या कमी होगी, कितने डेड बॉडी करेंगे, कितने लोग मरेंगे। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ डेथ फ्रॉम बिगिनिंग। ये 2003 की बात चली, 2.5 साल तक चला, 2003, 4 ने 5, और 2006 से 2011 तक खाली गया। और 2012 में सार्स का एक भी पेशेंट भारत में नहीं था। फिर 2012 में मर्स को भी आया। इस बार ये सार्स आया था, वो चाइना में आया था,
और मर्स को भी आया, वो सऊदी अरेबिया में आया, और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये वायरस फ्रूट बैट में से खजूर, वहां मिडिल ईस्ट में खजूर होते हैं एज ए फ्रूट, तो अपनी वो फ्रूट बैट जो होते हैं उसकी सलाइवा लाल ग्रंथि में वायरस होते हैं, तो सलाइवा में से वो फ्रूट बैट मतलब खजूर के ऊपर आए, खजूर नीचे गिरा तो नीचे कुछ लंगूर थे, उन्होंने खाया तो उनको हुआ, वो लंगूर उसको बोलते हैं पेरी डोमेस्टिक एनिमल, देन डोमेस्टिक एनिमल, तो डोमेस्टिक एनिमल हमारे यहाँ गाय भैंस होते हैं और अरबस्तान में ऊंट होते हैं, तो कैमल को इन्फेक्शन लगा, और कैमल को जब कोरोना हुआ तब उसके लिप्स जो है वो फटने लगे और लिप्स में से ब्लीडिंग होने लगा वो ब्लीडिंग में वायरस था, और वहां अरब पर्सन ने उसके अपने हाथ से वो मलम लगाया ऊंट के होठ के ऊपर, और दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ ए मर्स कोवी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये 2012 में था, 4 साल तक चला, 12, 13, 14, 15, 16। हमने पॉलिसी गुजरात में बनाई कि हम जितने भी हज पढ़ के आएंगे, दुबई से लोग आएंगे, उनका हम 15 दिन तक टेलीफोनिकली हमने मॉनिटर किया, सब स्वस्थ है कि नहीं है, 15 दिन फोन किया, इतने 2011 से आज तक हम करने आ रहे हैं, और आज तक पूरे देश में सार्स का या मर्स कोवी का एक भी पेशेंट मरीज नहीं है। ये वायरस 4 साल तक चला, 12, 13, 14, 15, 16, 2017, 18 खाली गए, और 19 में कोविड वायरस आया जो वुहान में आया, और फिर कुछ 6 ही हफ्तों में 70 कंट्रीज तक पहुंच गया। ये WHO के वो चेयरमैन हैं, DGH हैं, जिन्होंने डिक्लेयर किया 30 जनवरी को कि इट्स ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। मैं और मेरी टीम, हम मैं जो हाथ दिखा रहा हूँ मैं खुद हूँ, हम बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कॉन्गो का हमारा एक्सपर्टीज पहले से है, हमने पूरे देश में पहली बार काम किया है, पॉलिसी बनाई है, तो वी वर गियर्ड अप फ्रॉम बिगिनिंग। जैसे पेशेंट आया मैं घूमने लगा, ये मेरा D9 वार्ड है, आइसोलेशन वार्ड है, जहां हमने पेशेंट को, मरीज को, हमारी 4th फ्लोर पे पेशेंट है, जहां हमने ठान लिया कि हम वहां काम करेंगे। 7 जनवरी 2020 को वुहान में पेशेंट आया, और 7 दिन के बाद आया उत्तरायण, 14 जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 में जब उत्तरायण आई, उसके दिन से मैं चलने पड़ा। ये मेरा सूरत का लेक्चर है, सूरत का मैंने फोटो है। भारत में वायरस आया 30 जनवरी को 2020 को, और गुजरात में आया 19 मार्च 2020 को। मैं निकल पड़ा 14 जनवरी से, तो 14 जनवरी से मार्च 19 तक 2 महीना 60 डेज में मैंने गुजरात भर में पहला प्रवास किया। सभी डॉक्टरों को मैंने ट्रेन किया, सभी गुजरात की हॉस्पिटल में व्यवस्था किया, वेंटिलेटर है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, सब लोग ट्रेन है कि नहीं ट्रेन है, तो ये करने का मुझे मौका मिला। और जैसे 19 मार्च को राजकोट में जंगलेश्वर स्थान में पहला मरीज आया कोविड का, तब जाके मैं हॉस्पिटल में जाके बैठ गया, राजकोट आउटब्रेक करके मैं अहमदाबाद से बैठ गया। सबसे पहले स्वाइन फ्लू जब आया, तब स्वाइन फ्लू आया था गांधीधाम पोर्ट पे आया था। पूरे देश में वायरस आने वाला था एयरपोर्ट से, पर मैं बिल्कुल तैयार था, वायरस कैन कम थ्रू पोर्ट ऑल्सो। 1600 किलोमीटर का दरिया किनारा है, तो मैं सबसे पहले गया गांधीधाम कंडला, और ये वहां के डॉक्टर के साथ मैंने, एयरपोर्ट के डॉक्टर के साथ में, इस ऊपर है वो सूरत के डॉक्टर है, ये नीचे डॉक्टर है वो सूरत का पोर्ट है। मैं, ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट है सूरत का जो पोर्ट है, वहाँ पोर्ट के डॉक्टर, वहाँ के मरीन पुलिस, वहाँ के कोस्ट गार्ड, सबके साथ मैंने मीटिंग किया, सबको समझाया क्या हो सकता है। गांधीधाम में मेरा एक स्टूडेंट है, इस फोटो में राइट साइड दिख रहा है, वो गांधीधाम के मेरा जो स्टूडेंट है, उसको मैंने, ही इज अ पर्सन, पूरे गुजरात में कोई भी शिप जब ठहरता है तो माय डॉक्टर प्रजापति इन गांधीधाम कंडला, ही यूज्ड टू गिव परमिशन। मैंने उसके साथ 4.5 घंटे बिताए, और मैंने बताया तेरा एक साइन क्या कर सकता है, क्योंकि जितने भी जहाज आते हैं, गुजरात में 12 बड़े पोर्ट है और 6 बड़े पोर्ट है और 12 छोटे पोर्ट है, 18 बड़े पोर्ट है जहां विदेशी जहाज आते हैं। तो ये विदेशी जहाज में जो क्रू होते हैं, 18 से लेके 24, 25, 30 तक क्रू होते हैं, ये सब क्रू ऐसे होते हैं, उसमें कोई रणछोड़ भाई के कमलेश भाई नहीं होता, उसमें चाइनीज, फिलिपिनो, सोमालियन, सिंगापुर का बंदा है, वो लोग होते हैं। इससे चाइना से यहाँ आने की गुंजाइश बहुत थी। ये जो मेरा फोटोग्राफ है वो पिपावा पोर्ट का है। तो ऐसे हमने वहां जाके
ये आप देख रहे हैं, ये मेरी राइट साइड के जो ऊपर का फोटो है, वो कोस्ट गार्ड को मैंने ट्रेनिंग किया, जहाज पे जाके ट्रेन किया कि वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको भी लग सकता है कोविड और वो बचा भी सकते हैं। तो ये सब बातें मरीन पुलिस, कस्टम वाले, पोरबंदर का दरिया किनारा ऐसा है कि पोरबंदर का दरिया किनारा जहाज लैंड तक नहीं आता, वो 1 से 2 नॉटिकल माइल दरिया में जाना पड़ता है। सबसे पहला जहाज पे कौन जाता है? कस्टम का आदमी जाता है, उसको ट्रेन किया। आप जाएंगे, आप लेके आ सकते हैं, तो आपको चौकन्ना रहना है। और प्रजापति को बोला मैंने, एक भी पेशेंट मरीज है, सीधा परमिशन गुजरात में लैंड होने का मत दीजिए। ये सब बातें मैंने जनवरी में किया, मार्च में आने से पहले। इसलिए इसी बार जो पहला पेशेंट आया वो गांधीनगर में एक उमंग करके था, वो और उसका रिलेटिव जो फॉरेंस है उसमें मिला। वी कुड प्रिवेंट एंट्री ऑफ द वायरस इन गुजरात फ्रॉम द पोर्ट दिस टाइम। सो आने से पहले हम गुजरात में चाइना में हुआ, तब से हमने पूरा सिस्टम, हेल्थ मिनिस्ट्री और माननीय रूपाणी साहब ने पूरा व्यवस्था किया। हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर खुला, हमने सेटकॉम से सब लोगों को ट्रेन किया। पर्पस ये था, मैडम भी उस वक्त पे थी, तो शी वाज हेल्थ सेक्रेटरी, तो जयंती रवि मैडम, हमारी पूरी टीम काम करती थी। हम कैसे, आशा वर्कर जो गांव में रहती है वहां से लेते, हमारे डॉक्टर को वेंटिलेटर ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग हमने किया। और पूरे गुजरात में मैंने बताया 7 जनवरी को चाइना में पेशेंट आया, 30 जनवरी को भारत में आया और 19 मार्च को गुजरात में आया। ये जो 2 माह का जो पीरियड है, 60 डेज, मैं पूरे गुजरात में प्रवास करके मैं जिंदगी का भगवान ने मौका दिया काम करने का, हम लोगों को बचा सके। पूरे गुजरात में घूम के बताया 60+ वाले लोग मरने वाले हैं। और जितने भी डॉक्टर थे, जो डॉक्टर नहीं माना, क्योंकि उस वक्त पे पहले वेव के टाइम वैक्सीन नहीं था, इसलिए कि उनको बचाना बहुत जरूरी था। इसलिए वैक्सीन से आने से पहले यदि वो प्रैक्टिस में जो डॉक्टर मर गए, वो सबने प्रैक्टिस चालू रखी थी, और वो गलत बात थी। पाटन में मेरा लेक्चर था, तो पाटन में एक डॉक्टर बोला, मैंने बोला 60 साल के लोगों को घर में पाँव में बेडी डाल के बिठा दो। एक लड़का उबा था, मेरा स्टूडेंट था, डॉक्टर था, वो बोला साहब ये मुझे रिकॉर्ड करना है क्योंकि मेरे पिताजी मानते नहीं है। तो उन्होंने मेरा पूरा रिकॉर्ड किया, उनके पिताजी को सुनाया, उनके पिताजी ने माना, आज भी वो जिंदा है। बात यह है कि कुछ बातों में जहाँ ये वायरस है वहाँ थ्रेट बहुत रहता है। हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, कोई भी रोग के 3 स्टेज होते हैं। हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारे सब में ट्यूबरकुलोसिस है, पर वो इन्फेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन में डिजीज नहीं है। इन्फेक्शन मतलब संक्रमण, चेप का लगना, तो इसका मतलब रोग नहीं। जब इन्फेक्शन में से रोग बनता है तब जाके, रोग कब बनता है? ओबेसिटी बन गया, डायबिटीज बन गया, प्रेगनेंसी आ गई, या HIV है। यदि बॉडी की इम्यून सिस्टम खराब हुई तो इन्फेक्शन कन्वर्ट इनटू अ डिजीज। सो ऑल आर 100% इन्फेक्शंस। इसलिए कोविड में सब लोग नहीं मरते। जिसका इम्यूनिटी अल्टर्ड है, या डायबिटीज है, ओबेसिटी है, कोई ना कोई रोग है, वो लोग को मरने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अल्टर्ड इम्यूनिटी, इट इज नॉट द वायरल लोड, it is a immunity which kills the person, and that's why there are 3 stage: infection, दूसरा स्टेज डिजीज, और तीसरा कदम है दर्दी मरीज जो है वो बच जाता है, मृत्यु होता है, या फिर फेफड़े में दाग रह जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। हम जल जाते हैं, जैसे स्कार बनता है ऐसा स्कार फेफड़े में बनता है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सो इन्फेक्शन, डिजीज एंड आउटकम आर द 3 स्टेप्स ऑफ एनी इन्फेक्शन। यदि आप वैक्सीन कर देते हैं और वैक्सीन आती है, तो आप नेचुरल इन्फेक्शन से बदले, वैक्सीन में भी वायरस ही होता है पर वो दबा हुआ होता है। तो दबा हुआ वायरस इन्फेक्शन कर सकता है, इम्यूनिटी दे सकता है, पर डिजीज नहीं करता है। इसीलिए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज में वैक्सीन लेनी चाहिए। जो लोगों ने लिया वो सब में फायदा देखने को मिला। पूरे गुजरात में वैक्सीन का ड्राइव, उसका कॉम्प्लिकेशन मैं देखता हूँ, मैं कमेटी का हेड हूँ, और पूरे वैक्सीन की जो साइड इफेक्ट है उसके ऊपर मैंने ध्यान किया है, उसकी सबकी जांच किया है, केस टू केस बेस पे कमेटी बनाई है। और पूरे देश में एक ही बंदे का एलर्जी से डेथ हुआ, बाकी गुजरात में कोई वैक्सीन की वजह से कोई डेथ नहीं है। वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी को जागरूक करता है, तो इन्फेक्शन, वैक्सीन आप वैक्सीन देंगे उसके बाद भी नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो डिजीज में कन्वर्ट नहीं होगा, इन्फेक्शन हो सकता है। आप सुनेंगे इन्फेक्शन होने के, वैक्सीन लेने के बावजूद भी इन्फेक्शन लगा, ऐसे बहुत सारे लोग आपको सुनाई को पड़ेगा। पर वही बात है, वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन की गारंटी
नहीं है, आप मास्क नहीं पहनेंगे, आप हैंडशेक करते रहेंगे, कंजेस्टेड एरिया में जाएंगे तो इन्फेक्शन होगा, और कन्वर्जन इनटू डिजीज नहीं होगा, जान नहीं जाएगी। ये भी इतना इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो बात होती है मैनेजमेंट में, वो सबसे पहले केस आता है। मैंने बताया वो दबा करके लड़का आया, सॉरी उमंग करके लड़का आया गांधीनगर में, उसके 32 कॉन्टेक्ट को इन्फेक्शन लगा और उनके ग्रैंडफादर का भी डेथ हुआ। तो केस में से क्लस्टर बनते हैं। क्लस्टर कौन बनता है? जो नजदीक में है। यदि वो कोई बंदा पेशेंट है, वो कोई दुकान पे गया, दुकान पे उसने खांसी खाई, तो दुकान के आसपास क्लस्टर में भी हो सकता है। अपने परिवार वाले जहाँ रहता है, अपनी जॉब करता है, वहां भी आपको मिलता है। उसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड आता है। जो सेकंड वेव था वो कम्युनिटी स्प्रेड का था। हमें लॉकडाउन का निर्णय लिया, पूरे गुजरात में लिया। इसके पीछे केस को केस स्टेज में या क्लस्टर स्टेज में रुकने का था, वहां कंट्रोल करने की कोशिश किया, क्योंकि शुरुआत में वैक्सीन नहीं थी और पेशेंट यदि बढ़ जाते तो हम डिले करना चाहते थे कि हम कितना कम्युनिटी स्प्रेड कम कर सके। सो कोई भी आज ये बात मेरी याद रखना, कोई भी महामारी होती है वो 3 स्टेज में से पास होती है: इन्फेक्शन, डिजीज आउटकम, और तीसरा केस क्लस्टर। क्लस्टर मतलब झुमका, घर में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, कामकाज के स्थलों पर, आईसीयू, दवाखाना, क्लस्टर बनता है। और उसके बाद कम्युनिटी स्प्रेड होता है, फिर वो आपके हाथ में कम रहता है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहना, बार बार हाथ धोना, एक कम्युनिटी स्प्रेड में रोकने का यही एक तरीका है। बहुत सारी बात लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर को सराहना किया, उसमें घंटाराव किया, पूरे देश में घंटाराव हुआ शाम को। उसके बाद हेलीकॉप्टर से हमारी हॉस्पिटल के ऊपर पुष्प वर्षा भी हुई, जनता कर्फ्यू की बात आई, लोगों ने भी बहुत सहन किया है, क्योंकि हमने सूरत में हर रोज 10 लाख 12 लाख लोगों को खाना खिलाते थे। 25 लाख से ज्यादा लोगों को गुजरात के बाहर, जो लोग अपने अपने राज्य में जाना चाहते थे, उनको टिकट निकाल के वहां भेजना पड़ा। सो लॉकडाउन बहुत परेशानी वाली बात होती है। हमने देखा होगा सोसाइटी में एक पेशेंट बन गया तो जो लोग 3-3 दशक से साथ में रहते हैं, 30 साल से साथ में रहते हैं, वो भी खाना देने नहीं जाते थे, उनके ऊपर काम वाला नहीं आता था, खुद बीमार, होम आइसोलेट होते थे, फिर कोई सेवा करने वाला नहीं आता। तब जाके कम्युनिटी के लोग आगे आए, और कम्युनिटी के जो यंग बच्चे थे अपने अपनी कम्युनिटी के, इसमें सबसे पहले मुस्लिम समाज के लोग आगे आए। गोधरा की बात करूं, मैं पूरा गुजरात 3 बार घुमा इस बार, और समाज की ताकत क्या है वो दर्शन करने का मौका मिला। तो भरूच में, दाहोद में, भरूच में और गोधरा में 2 जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी के अपने समाज के लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर खुला। तो सरकार की ओर से हमने भी उनको ऑक्सीजन फ्री दिया और ऑक्सीजन लाइन लगवा दी उनकी मस्जिद के पास एक मकान में। तो ये हम सब भारतीय हैं, ये बातें सबको महसूस हुआ है। मैं पूरा गुजरात में हर कम्युनिटी के साथ मिला हूं। जब क्राइसिस में देश के देश बांधव के लिए काम आता है, समाज का बांधव समाज के लिए काम आता है, ये बातें प्रस्तावित हुई है। वैक्सीन की बात करूं, आत्मनिर्भर की बात करूं, वेंटिलेटर के लिए सामान बनाया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी तरह से देखते हैं, उनका परसेप्शन अलग होता है। पर वेंटिलेटर पूरा गुजरात में विश्व बनता था। वेंटिलेटर की जो स्क्रीन आती है, एलईडी स्क्रीन, वो चाइना से आती थी, चाइना खुद फंसा हुआ था। इसलिए लोकल जो अवेलेबल है उसके में से बेस्ट हम क्या कर सकते हैं। ये वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक की बात हो, या फिर वैक्सीन की बात हो, पूरे विश्व में इतना वैक्सीन का मैनेजमेंट, कोई भी प्रधानमंत्री या मिनिस्टर या स्टेट का मिनिस्टर को वैक्सीन नहीं मिला है जब तक हेल्थ केयर वर्कर का पहले वारा लगा, क्योंकि उनको अंदर जाना था। ऐसी बातें जब जब टर्न आया तब तक उनको वैक्सीन मिला, तब तक नहीं मिला है। एक एक डोज का मॉनिटरिंग हुआ और पूरे देश को एक बड़ी ऊंचाई पे ले गए हैं। आत्मनिर्भर भारत में हमने, मैं पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया, मैं पंजाब का भी महीने में 5 दिन में पंजाब जाता हूँ, एम्स बठिंडा का मैं इंचार्ज हूँ। पंजाब में उस वक्त खेडूत आंदोलन चल रहा था, तब जाके एक बारबाडोस की एक गायिका ने अपने पंजाब के खेडूत के ऊपर कमेंट किया, अरे भाई तू तेरा देश संभाल, हमारे यहाँ क्या करना है। फिर भी उसे कमेंट किया। इन स्पाइट ऑफ दैट बारबाडोस में भारत ने वैक्सीन के डोज मुफ्त में भेजे और बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री का आभार कहा। ये हम विश्व गुरु की बात करते हैं,
विश्व बंधुत्व की बातें करते हैं। ये बातें सिर्फ बातें नहीं है, हमने कोविड समय पे देखा है कि हम साथ में कैसे, हम पूरा कोई भारत नहीं पूरे विश्व में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सब बातों करते हुए हमने वैक्सीन के थ्रू भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति का विचार, विश्व बंधुत्व का विचार वैक्सीन के जरिए हमने साकार किया है। ये सब बातें हम इस पूरी प्रक्रिया से मैं घुमा, पूरा वैक्सीन का व्यवस्था से गुजरा, उसके बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि वैक्सीन के थ्रू विश्व बंधुत्व हमने एस्टैब्लिश किया है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हैंड वॉश की बातें हैं, और यार फेस वॉश की बातें हैं, गार्गल की बातें हैं, स्टीम इनहेलेशन की बातें हैं, ये सब बातें हम जानते हैं। दो बात तक नहीं है, यदि आप घर से बाहर जाते हैं, जॉब पे जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, या कॉलेज से घर पे आए, अपने स्थान से निकले और अपने गंतव्य तक पहुंचे, तो वहां स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, तो वहां जाकर सबसे पहले हाथ धोना, 1 मिनट हाथ धोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी मरीज को देखने जाते हैं, तो आने के बाद बात भी लेना है, बच्चों सीधे आपको टच ना करे। नॉट ओनली कोविड, यू कैन ब्रिंग एनी इन्फेक्शन टू योर होम इफ यू डोंट टेक केयर। सो सलामत अंतर किसी भी मरीज से, या जहां जहां पॉसिबल है आप 1 मीटर के अंतर, मतलब 2 हाथ फैलाए, जितना अंतर मिलता है इसको 1 मीटर की दूरी बोलते हैं, वो दूरी को हम संभाले, बार बार हाथ धोए, और सैनिटाइजर का बात मैं बोलना चाहता हूं। मेरा टाइम हो जाता है, मुझे बोल देना, आई स्टॉप इट। सो सैनिटाइजर जो है बार बार नहीं करना चाहिए। इफ द हैंड्स आर सॉक्ड, गंदे हुए हैं तो हाथ धोइए, गंदे नहीं हुए हैं तो एवरी 45 मिनट्स यू कैन टेक ड्रॉप्स ऑफ सैनिटाइजर, एंड उसको बोलते हैं हैंड रब। हैंड रब व्हेन द हैंड्स आर क्लीन एवरी 45 मिनट्स टू 1 hour, and hand wash if hands are infected or likely to be infected, तो immediately करना चाहिए। बार बार हाथ धोना सबके लिए अच्छी बात है। मास्क पहनने से ट्यूबरकुलोसिस और अदर रेस्पिरेटरी बर्न इन्फेक्शन में भी फायदा मिलता है। तो सलामत दूरी, हैंड वॉश, हैंड रब, फेस वॉश, गार्गल, स्टीम इनहेलेशन और मास्क, ये सब थोड़ी फ्री में है, इसलिए इसमें कीमत पता नहीं चलती, इसे लोग अवॉइड करते हैं। और लास्ट बात, किसी से भी ग्रीट करें, मिले तो हाथ मत मिलाइए। भारतीय परंपरा के अनुसार आप एक दूसरे को गले मिलना या हाथ मिलाना वो छोड़ के नमस्कार मुद्रा से किसी का अभिवादन कीजिए। भारतीय संस्कृति की पहचान को हम कायम करें। ये जो मास्क है, उसकी जो प्लीट्स होती है, जो ट्रिपल लेयर मास्क है, आप देखेंगे साची रीत, मतलब उसकी जो प्लीट्स है वो डाउन स्लोपिंग होनी चाहिए, तो वो सही है। यदि वो पहनने के बाद अप स्लोपिंग रहती है, यहाँ ऊपर देखेंगे नेजर क्लिप है, इसमें भी नेजर क्लिप है, आप दोनों साइड से पहन सकते हैं, पर डाउन बाहर की साइड पे यदि डाउन साइड प्लीट्स है तो सही रीत है। यदि खाड़ा पड़े छे तो वायरस आईने बेसी जाए એવું याद रखवानुं, तो गलत पहना है, ऐसे डाउन स्लोपिंग होना चाहिए, वो बात हम ना भूले। हमने नई जो चीज पैंडेमिक में पाई वो थी एक गन। सब लोग गन के, पहले हम टेम्परेचर थर्मोमीटर मर्क्यूरी वाला था, फिर डिजिटल आया, एक कान के टिम्पानिक भी आए, ऐसी स्ट्रिप भी आती है कपाल पे, फोरहेड पे लगाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट विदाउट टच यू कैन मेजर टेम्परेचर, एंड दैट इज अ थर्मल गन। इसका भी रहा। पीपी की बात है तो क्या करूं, इतना पसीना बहता था, अहमदाबाद की 44 डिग्री टेम्परेचर में इतना पसीना होता था, और पेशाब हमारी डॉक्टर की, नर्स की जो काम करते थे अंदर गर्मी में, आईसीयू में तो ऐसी होता है। मेरे पास 1200 बेड हॉस्पिटल में मेरे पास बड़े बड़े आईसीयू हैं, और 350 वेंटिलेटर वाले आईसीयू थे, और 60 का एक, ऐसे 17 मेरे पास वार्ड थे जहाँ एसी नहीं था। तो पसीना इतना होता था कि यूरिन आउटपुट हमारा कम हो जाता था, और मास्क एक के बजाय डबल पहनते थे, क्योंकि शुरुआत के वक्त में वैक्सीन नहीं थी। तो इतना काम किया, पसीना इतना हुआ, तो व्हेन यू रीब्रीथ थ्रू द N95 मास्क, आपकी बॉडी की पीएच अल्टर होती है, અને મગજ બેર મારી જાય આ પીપીઈ માં જ્યારે કામ કરી ત્યારે ખબર પડે। और कुछ बातों में तो ये आप जापान के और चाइना के हैं, ये गलत बात चली, कुछ लोगों ने बाल भी काट दिए क्योंकि बाल का एक्सपोजर होने से वहां से इन्फेक्शन आएगा, ऐसी भी गलत बात। ये बात बहुत मैं बहुत सम्मत नहीं था उस बात पे, इसलिए हमने यहाँ कभी प्रमोट नहीं किया
कि अब बाल काट दो। ये हमारा पूरा टीम, डॉक्टर है, नर्स है, पता भी चले, उसका स्टिकर, आइडेंटिफिकेशन, मास्क पहनते थे, ऊपर आंख के थ्रू, चश्मा के ऊपर भी हम गॉगल्स पहनते थे कि हमारी आंखों को मिले। ये स्टेथोस्कोप कान में पहन के ही रखते थे, क्योंकि बार बार निकालने में और पहनने में भी दिक्कत आ सकती थी। थक जाते थे हम काम करते करते, तो वहीं सो जाते थे, कभी फ्लोर पे भी सो गए थे जब थक जाते थे काम करते करते। लोग काम करने के लिए तैयार थी, पैसा देने के बावजूद भी क्लास 4 नहीं मिलते थे। पेशेंट को पलटाना, सगा वाले थे, कोई तो अलाउड भी नहीं था और पॉसिबल नहीं था। इसमें भी हम हंसना ढूंढ लेते थे, क्योंकि बात पता नहीं, पीपी पहनने के बाद पता नहीं चलता ये बाजू वाली कौन खड़ी है कौन खड़ा है, इसलिए हम उसका फोटो लगा देते थे या उसके पीछे नाम लिख देते कि भाई पता था हम किससे बात करते थे। मेरी तो वाइफ भी प्रोफेसर थी वहां, वो भी थी, पता नहीं चले कुछ आड़ा तेरा बोल दे, घर में झगड़ा हो जाए, इसलिए कैसे हम हंसते रहे और सुकून ढूंढते रहते थे। दीज आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस। आप देखें, ये ऐसे कुछ लोग कभी कभी जब ट्रेनिंग किया उसके बावजूद भी कभी कभी लोग ऐसे पीपी निकाल देते थे, कहीं रास्ते में भी कभी कभी मिलते थे, कभी कचरे में मिलते थे। दे वर सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, ये ध्यान रखना। इन एनी हॉस्पिटल the flooring cleaning is important thing. Second thing is door handle. Door handles are source of infections. तो source of infection ये है इसलिए क्योंकि कोई भी बंदा ने खांसी खाया, अपनी खुली हथेली में खांसी खाया, फिर डोर खोलेगा तो वायरस यहाँ रखेगा। ऐसी वातावरण में डोर हैंडल पे वायरस 2 से 3 दिन जिंदा रहता है, इसलिए 2 बार ज्यादा नहीं है। यू ओपन द डोर विद द, ऐसे हमारा जो आर्म का पोर्शन होता है, एल्बो होता है, वो एल्बो से खोलना चाहिए, सीधा हाथ से नहीं खोलना चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वाइटिंग डेडली इन्फेक्शन। ये बात गलत है, ऐसे खोलना नहीं चाहिए। ये जो डॉक्टर हमारा है वो स्टेयरकेस अप या डाउन देता है, तो स्टेयरकेस को पकड़ के नहीं चलना है हॉस्पिटल में। ये देखो यहाँ जो क्लीन कर रहा है, तो ये डॉक्टर को सिर्फ फ्लोरिंग नहीं साफ करवाना है, स्टेयरकेस के भी है, ये भी साफ करवाना है, और डोर के हैंडल भी साफ करवाना है, वहां से इन्फेक्शन आ सकता है। आपको हॉस्पिटल में जाओ तो कभी ये स्टेयरकेस को पकड़ के मत चढ़िए, उसको छूना नहीं है। वहां कोई और तीसरे मंजिल पे किसी ने खांसी खाया, टीबी वहां भी बैठा हो सकता है, ध्यान रखना है। नमस्कार मुद्रा से सबका अभिवादन करें। ये सब बातें, हम तो 1 मीटर में काम करते थे, रिस्क भी बहुत था। ये सब बाइक पे वेंटिलेटर है या ऑक्सीजन चलता है, ये सब पे एरोजोल इन्फेक्शन, या किसी का हार्ट बंद हो चुका तो हम उसको मसाज देते थे, इसको सक्शन करते थे, या सिंपल बहनें जब सुबह में डस्टिंग करती है हॉस्पिटल में, वहां से भी पूरा दिन पेशेंट बैठा हुआ है, खांसता रहेगा, और बहनें जाके नर्सिंग जो चादर जोर से झटकेंगे तो वहां से भी एरोजल होके हो सकता है। नीचे देखिए आप, ये सक्शन करते हैं ट्रैकेस्टोमी में से, वहां से माउथ में से सक्शन करते हैं, वहां से भी एरोजल, या सांस बंद हो जाता है तो हम अम्बूस बैग से ब्रीदिंग करते हैं। सब जगह पे डॉक्टर को मरने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हम एम्बुलेंस भी क्लीन करते थे, सब लिफ्ट भी क्लीन करते थे, क्योंकि एम्बुलेंस और लिफ्ट में भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत रहता है। ये मशीन ब्रीदिंग एक्सरसाइज में बहुत काम किया, जब न्यूमोनिया से रिकवर हुए ये मशीन ने बहुत काम किया। जब पहले शुरुआत में आया प्रोन पोजीशन, कुछ पता नहीं तो आराम कीजिए, और उल्टा सोने से भी फेफड़े में इन्फेक्शन कम होता है, और यदि हो भी चुका है तो भी राहत मिलती है। तो प्रोन वेंटिलेशन भी बहुत, जब दवाइयां नहीं है तब शुरुआत में क्या करके हम लोगों को बचाए, इसके ऊपर गौर करते हुए ऐसी हम बातें करते रहे। बहुत सारी रेमडेसिविर की बहुत सारी दवाई आई, पहले फेज में नहीं थी, दूसरी फेज में आई। पूरे गुजरात में सबसे पहले रेमडेसिविर मैंने दिया मेरे ट्रायल में, WHO का मैंने ट्रायल किया, सबसे पहले रेमडेसिविर मैंने दिया, और मैं खुद बैठा रहा हुआ वो पेशेंट के पास, बिल्कुल सेफ मेडिसिन रही। सिर्फ उनको से हार्ट रेट कम हो जाता था, अराउंड 50 हो जाता था। मुझे हुआ, मेरी वाइफ को कोविड हुआ, हम दोनों भर्ती थे, मेरी वाइफ को रेमडेसिविर दिया, उसकी दबकारा 48 तक पहुंच गए, 3 दिन तक रहा, पर सेल्फ लिमिटिंग था, धीरे धीरे बाहर आ गई, मरी नहीं। मैंने कोविड में बहुत गवाया है, यदि वो मर जाती प्रोफेसर थी 50 लाख मिल सकते थे, ये 50 लाख का घाटा हुआ है। ये देखो भाई, हमें कोविड घाटे का हुआ है। हाँ चलो चलो, बाकी बहुत सारी मेडिसिन आई, बेड रेस्ट, एंटीवायरल की बात छोड़ दीजिए, आपके लिए ज्यादा नहीं है। एक बात याद रखना है, जब भी कोई महामारी आती है तब प्लेंटी ऑफ वाटर विथ ORS, इलेक्ट्रॉल पाउडर जिसको हम बोलते हैं, वो लेना चाहिए। हर जितने घंटे जगते हैं, हर घंटे पे 200 ml पानी पीने से, उसमें ORS डालने से, उसमें खांड, मिठानो, गोड़, 1 गिलास पानी,
2 चमची खांड, 1 चपटी मीठू, 1 glass water, 2 teaspoonful sugar and 1 pinch of salt for any disease. If you take this, आपका इलेक्ट्रोलाइट और हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, बेड रेस्ट रहेगा। मोबाइल भी आपकी कैलोरी यूज करता है, इसलिए मोबाइल भी मत लीजिए, बेड रेस्ट कीजिए। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, विटामिन सी लीजिए, विटामिन ए लीजिए, ये सब बातें बहुत काम करती है। एंटीवायरल सब आपके लिए विषय नहीं है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बातें आई, कई लोगों ने घर में बसाया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आया, इनसे 5 लीटर अच्छा मशीन हो तो 10 लीटर तक ऑक्सीजन हवा में से बना सकता है, इसका भी वपराश बहुत रहा। हमने ऑक्सीजन टैंक लगाई, पूरी हमारी बड़ी बड़ी टैंक हर 8-8 घंटे पे, मेरे 350 वेंटिलेटर चलते थे इसके ऊपर एक साथ में। पूरी इतनी ऑक्सीजन टैंक आज लगाते थे, 1 महीना 1.5 महीना चलता है, वो पूरे 6 घंटे में खाली रहती थी, दूसरी लगानी पड़ती थी, एक स्टैंड बाय रखनी पड़ती थी। आप देख सकते हैं राइट साइड के फोटो में बर्फ लग जाता था, इतना सा बर्फ लग जाता है कि जैसा बर्फ बाहर लगता है ऐसा बर्फ अंदर लग सकता है। इसलिए ऑक्सीजन को लेते हुए इसके ये बर्फ पिघालने के लिए हमने लोग रखे थे, उसके ऊपर पानी का मारा किया। कैसे लोग बचे, इसके लिए ये सिर्फ दवाई नहीं होती, ऐसे थोड़े मैकेनिकल बातें भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद मिकोन मार्केट से आया, 30 साल की एक बेटी, पूरे देश की गाइडलाइन लिखने में मेरा योगदान मेरे चेयरमैनशिप में लिखाई गई। उसके लिए 7 लाख रुपए की दवा थी, जो दवाई आती है वो 7 लाख रुपए की दवाई थी। जब तक मेरे हाथ में रहा, हमने एक भी पेशेंट, गरीब पेशेंट को दवाई के बगैर नहीं रखा, और गरीब के बदले किसी पैसे वाले को या वकदार व्यक्ति को चला गया, ऐसा भी नहीं होने दिया। ये सब बातें अभिमान की नहीं है, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, हमारे एनएसएस के बच्चे शास्त्र बोधा रणे योद्धा, हमारी मानसिकता भी ऐसी बने, ऐसे कोई भी प्रेशर को हम सकम न करें और राष्ट्र की सेवा करें, गरीब लोगों की सेवा करें, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दोज हु कैन मैनेज द थिंग्स, ऐसा नहीं होने दिया। बाकी की बातें, डेड बॉडी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि डेड बॉडी के लिए भी वेटिंग स्पेशल में चल रहा था, इतने लोगों का भी हुआ। मैं कल देख रहा हूँ, ये जब उठाते हैं पेशेंट को, कभी इसमें डायरिया होता है, यदि ग्लोव्स के बगैर हम उठाते हैं पेशेंट को तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर को लग सकता है। इसलिए अब रोबोट आए और पेशेंट को उठाए, वो दिन हम अभी वेट कर रहे हैं। एवरी डेड बॉडी खांसी नहीं खाती, पर उसके ऊपर जो पड़े हुए होते हैं, जो बूंदे पड़ी होती हैं, एरोजोल पड़े होते हैं, उसमें से इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए वो बातें हैं। व्हाट्सएप की दुनिया में बहुत सारे रूमर्स चले, मिथ चले, कोविड ऐप की भी बातें चली, हमने बहुत सारा टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया पूरा देश के लेवल के ऊपर। कोई ने अपने ट्रैकिंग के लिए अच्छा काम किया, मिनिस्ट्री में भी पहले हर्षवर्धन जी थे, बाद में मनसुख जी आए, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और कुछ बातें एग्जॉस्ट भी हुई, बेड नहीं मिलता था, मेडिसिन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कभी ये भी आई, इतने सारे एक साथ में पेशेंट बढ़ते हैं। कभी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी गंभीरता बहुत रही है, वहां भी बेड नहीं मिलते थे लोगों को। आपने देखा होगा चाइना में चलते थे लोग गिर जाते थे, ये सब बातें हमने देखा, गाइडलाइन बनाने का मौका मिला। उसके बाद थर्ड वेव में पीडियाट्रिक पेशेंट का आया, तो पीडियाट्रिक और प्रेग्नेंट लोगों में ज्यादा रूरल स्प्रेड की पॉसिबिलिटी रही, वो भी मैनेज किया। एक जगह पे डेड बॉडी रिवर में फेंक दिया, ऐसा भी समाचार आया था। इस बार रिसर्च की बात करो, इस महामारी में 45 डिग्री में पीपी के साथ जब मगज बैर मारते तो एक होते, भगवान ने 3 रिसर्च में पूरा WHO का मैं ट्रायल, आई वाज PI फॉर द होल गुजरात। उसके बाद एक जीनोमिक स्टडी किया, और दूसरा ICMR का स्टडी किया, प्लाज्मा का, खून से बचाने की कोशिश प्लाज्मा का। ये तीनों का मैं PI रहा और अच्छा काम करने का मौका मिला। ये सब बातें आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, जब क्लेड कौन से के साथ वायरस बदले, इसकी सब बातें हैं, ज्यादा मैं साइंटिफिक बातें हैं डिटेल में जाऊंगा। पूरे विश्व में सब बोलते हैं डबल ब्लाइंड स्टडी। अरे भाई, डबल ब्लाइंड स्टडी भारत में क्या है, धृतराष्ट्र और गांधारी, एक आधे अंध थे, और जब बेटे की बात आई तब पूरे अंध हो चुके, और गांधारी पूरी देखती थी, फिर भी पतिव्रता थी, इसलिए आंख पे पट्टी बंध गया। कुछ ऐसा ही सब ड्रग ट्रायल में, या ये कोई अविश्वास की बात नहीं कर रहा, जो रियलिटी है पूरे विश्व में। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और NEJM जैसे 200 साल के पुराने साइंटिफिक जर्नल में जो 3 लोगों ने फर्जी आंकड़े के साथ आर्टिकल पब्लिश किए, वो हिंदुस्तानी थे। ये बात
पूरे पांडे में मुझे बहुत दिल को मुझे पीड़ा देती है। या भारतीय ऐसा कर सकता है क्या? भारतीय लिख सकता है क्या? पर ये सच्चाई हुई। ऐसे बड़े बड़े रेपुटेशनर्स को बट्टा लगाने में हमारे कुछ भारतीय उसमें शामिल थे। ये डबल ब्रांड स्टडी, कभी कभी फार्मा के लिए देखो, आंख बंद कर लो, इधर उधर सब बातें हैं, अच्छा नहीं, शोभा नहीं। जो 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 सच्चा नागरिक है, सच्चा भारतीय है, इस ट्रायलों में कभी बेईमानी नहीं करेगा। हम जितने भी एनएसएस वाले हुए सुन रहे हैं, हम भी जो स्टडी में पार्टिसिपेट करें, कहीं कुछ काम करें, जहां करें, हमारे जो नंबर गेम है उसमें हम पूरा प्रामाणिकता रखें, ये मैं समझ रहा हूं। व्हाट इज न्यू? तो अभी रोबोट आने वाले हैं, खाने के लिए, उठाने के लिए रोबोट आने वाले हैं, उसको हम देखेंगे। आप इतनी शांति से सुन रहे हैं, समय होने मुझे थोड़ा लेट हुआ। अरे गुजराती में कैसे ભલી બંદૂક થી એક જણ બીવે, પણ ખાલી બંદૂક હોય તો જેના પર બંદૂક હોય એ પણ બીવે. મને તું શું બોલીશ? મિકેનિક ના બધા, એન્જિનિયરિંગ ના બધા ખેરખાઓ હોય, વિદ્યાર્થીઓ પણ એન્જિનિયરિંગ ના હોય, અને પેન્ડેમિક માટે બોલવાનું હતું. તમે તો તમને એમ હશે કે ડોક્ટર શું ભણાવશે? હું વધારે બીતો હતો કે હું શું બોલીશ. ખાલી બંદૂક બે ખાલી બંદૂક થી બે જણા બીવે. ચાલો, જો આ લેક્ચર તમારો સમય જો સારું લાગ્યું હોય તો આજનો દિવસ મારો રાષ્ટ્રમાં હું રાતે ઊંઘી શકીશ કે રાષ્ટ્ર માટે મેં કામ કર્યું, અને કોઈ કમી લાગી હોય એનો હું મારા સર ઉપર સ્વીકાર કરું છું. એક છેલ્લી વાતો કહીને મારે વાત પૂરી કરવી છે. કોવિડમાં માણસો વાયરસથી નથી મરતા, બોડીના રિસ્પોન્સ, ઇમ્યુન રિસ્પોન્સથી મરે છે. આ ઇમ્યુનિટી કેવી રીતે અલ્ટર થાય? નંબર 1, ગુજરાત ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, જીવનશૈલી આધારિત રોગોમાં રાજધાની છે. એટલે તમને ડાયાબિટીસ હોય તો કંટ્રોલ કરાવો, ના હોય તો ના આવે. એના માટે શું કરવું? આ 4-5 વાત. સૌથી પહેલા કસરત. કસરત કઈ? એટલે ભાઈ જે ફાવે કર, કસરત કર. 22 મિનિટ જવાનું, 22 મિનિટ પાછા આવવાનું, 45 મિનિટ ચાલવાનું, અને ટહેલવાનું નહીં, ફાસ્ટ વોક પરસેવો જોઈએ. આપણે વોકમેન લઈને આપણે ધીરે ચાલીએ, બધું વોકમેન ગયા મોબાઈલમાં નેટ ઉપર ગીતો સાંભળીએ, ટહેલવાનું નહીં. 2 માસ ઉભા વાતો કરીએ એમ નહીં, સતત ચાલવાનું, ફાસ્ટ ચાલવાનું, દોડવાનું નથી કરતું. સ્વિમિંગ થી માંડીને ટેનિસ, તમારી તાકાત હોય એવી તમે એક્સરસાઇઝ કરો. કશું જ ના આવે તો ચાલવું જોઈએ. જે દીકરીઓ હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય, ચાલવાની તકલીફ હોય, અથવા જે લોકો મોટાળું એટલે કે જાડું શરીર છે અને કસરત ચાલુ કરે છે, એ બધાને વિનંતી છે કે પેલા પ્રેગ્નન્ટ બહેનો છે, કસરત કરવી જોઈએ. પેલા પથારીમાં સીધા સુવાનું અને હવામાં પેડલિંગ કરવાનું, સાયકલિંગ કરવાનું હવામાં. આવું 1-2-3 મહિના કરો, તમારા સ્નાયુઓ મજબૂત થાય, પછી તમે એક્સરસાઇઝ ચાલુ કરો. તો આ બહુ મહત્વની વાત છે. સૌથી આપણા દેશની જે યોગની વાત છે, સૂર્ય નમસ્કારની વાત છે, સમગ્ર વિશ્વએ સ્વીકારી છે એ સૂર્ય નમસ્કાર. રોજના 12 સૂર્ય નમસ્કાર કરો, હળવી કસરત કરો. સવારે વહેલા ઉઠીને 24 કલાકમાંથી અડધો કલાક કસરત કરશો તો બાકીના 23.5 કલાક ઉર્જાવાળા જશે. તો અડધો કલાક સવારે એક્સરસાઇઝ કરવી એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક વાત એ કસરતની. બીજી વાત, ખોરાકમાં ધ્યાન રાખો. વ્હાઇટ RDX 2 છે, નમક અને શુગર, બંને વ્હાઇટ RDX છે. બંનેથી બને એટલા દૂર રહો. મારે વાતો કરવી છે, હું ખાઉં છું, પણ પ્રમાણમાં ખાવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શુગર અને સોલ્ટ 84 લાખ યુનિમાંથી માત્ર મનુષ્ય વાપરે છે, બીજી કોઈ યુનિ નમક ભભરાઈને ખાતું નથી. એ જરૂરી નથી. નમક ખાવું જરૂરી નથી. માથામાં તેલ નાખવું જરૂરી નથી. કોલગેટથી જ બ્રશ કરવું જરૂરી છે, કોલગેટથી એમ નહીં. એટલે આ બધી વસ્તુઓ પર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સો વ્હાઇટ RDX, શુગર અને નમક પર અતિ સર્વત્ર વર્જયેત, અતિને ગતિ નહીં. આ વાક્ય યાદ રાખવું. અને ત્રીજી વાત, વોટ્સઅપમાં પણ અતિ ના થાય, ધ્યાન રાખવાનું છે. બહુ વોટ્સઅપ વાપર કરીએ, આપણો સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે હોય, ઇટ કેન હાર્મ યુ. તમારી ઇમ્યુનિટી પર અલ્ટર થાય. કેવી રીતે? અત્યારે સમજાવવાનો સમય નથી. વાતમાં વિશ્વાસ રાખજો. નંબર 1, તમે જ્યારે એક બેનના મેરેજ થયા, 7 ફેરા થયા, અને પછી કે મહારાજ ઉભા રહેજો. બોલે શું થયું? તો હું એનો સ્ટેટસ અપલોડ કરી લઉં, નાઉ મેરીડ. આટલી હદ સુધી આપણે વોટ્સઅપના બંધાણી થઈ ચૂક્યા છે. સો મેં કીધું એમ, કસરત કરવાની, અતિ સર્વત્ર વર્જયેત, સોલ્ટ, શુગર એન્ડ વોટ્સઅપ. અને ત્રીજી વાત એટલે ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ.
આ જે ટ્રમ્પ સાહેબ હશે ને એ ત્યારે દાંત ના બતાવે, બે ઓઠ ભીડીને આમ આમ મારો ચહેરો તમને દેખાશે નહીં, પણ ઓઠ ભીડીને આમ સ્માઇલ આપે, એને કહેવાય નો ટીથ સ્માઇલ. આ અમેરિકન સ્ટાઇલ છે. ગલગલિયા કહીએ તો ત્રણ દાંત બતાવે, K9 to K9. અને ભારતીય હશે ત્યારે બધા દાંત દેખાય, આ ડાપણથી ડાપણ બધા દાંત દેખાય, તો એને ભારતીય હાસ્ય કહેવાય. હવે માસ્ક પહેરીએ એટલે ખબર ના પડે કે આ ભારતીય હશો કે આ અમેરિકન હશો. એટલે મેં ક્રાઇટેરિયા બદલ્યા. પહેલા એમાં માસ્ક ઓછો હતો, પછી તો માસ્ક પહેર્યો એટલે ખબર ના પડે કે શું હશો, ભારતીય કે અમેરિકન. પછી મેં ક્રાઇટેરિયા બદલ્યો. દાંત દેખાતા નથી તો જો પેટ હલે એટલું હશે માણસ તો એની ઇમ્યુનિટી સારી રહે, એ ભારતીય હાસ્ય છે. કેમ? ચિંતા ચિંતા સમાન. જો તમે હસતા રહો અથવા તમે ભજન ગાઓ, આનંદ ઘડી હેતે બજવા હરી મારા સંતો સુહાગી મળ્યા આનંદ ઘડી. તમે ખડખડાટ હશો અથવા તમે તમે ભજન ગાઓ તો ચરમસીમાએ મગજમાં વિચાર આવતો નથી, અને વિચાર ના આવે ત્યારે અને અમન કહેવાય. અમન એટલે અમન ચેની, અમન, મન નથી. જ્યાં મન નથી એને અમન કહેવાય. આ અમનની સ્થિતિમાં વિચાર ના આવે, અને વિચાર ના આવે તો અહંકાર ના આવે. આખું સરસ સરસ કામ કરીએ, કોઈ પ્રોફેસર છે, કોઈ વિદ્યાર્થી છે, કાલે કોઈ તમે મોટા મોટા બ્રિજ બાંધશો, તમે મોટું કામ કરશો, સમાજમાં નામ થશે તમારું, પણ અહંકાર શૂન્યતા જીવન છે. આખો દિવસ કામ કરીએ, સાંજ પડે શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં, ભગવાન તારા ચરણોમાં, તેમને સાચું કરાવ્યું તોય તે કરાવ્યું, ખોટું કરાવ્યું તો તારો હું છું, તુહી 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 ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. આપણે મોબાઈલમાં આનંદ ન ઢૂંઢીએ, ખુદ આનંદ સ્વરૂપ છે એ ના ભૂલીએ, એ ચોક્કસ મને લાગી રહ્યું છે. આ બધા જ રસ્તા ઇમ્યુનિટી પ્યુરિફાયરના રસ્તા છે. સુરતમાં મારું લેક્ચર હતું ઇમ્યુનિટી, સુરતમાં मेरा लेक्चर था इम्यूनिटी एंड हैप्पीनेस बोथ एज डायरेक्टली कंसर्न. हंसते रहिए. अरे बहुत हुआ, बहुत लंबा बोला डॉक्टर साहब, तो बंद करो. लास्ट 3 स्लाइड पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं. और मैं आशा रखता हूं कि मैं मदारी नहीं हूं. कुछ थोड़ा अच्छा लगा तो जरा प्यार बरसाना, ऐसी विनती है. एक कपल था, अपनी फियांसी के साथ निकला बाइक पे, जुम 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 करके दोनों निकले घूमने के लिए, और रास्ते में बोर्ड आया आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है. क्या करे? पास में देखा चीला, गुजराती में चीला के भाई, टायर के निशान थे, कोई मेरे आगे गया होगा, तो वो साइड में कट लेके फिर आगे चलने लगा तो रास्ता तो खुला था. आगे आया तो रास्ता वहां भूआ पड़ा था, रास्ता नहीं जा सकता था, इसलिए वापस आया, आगे नहीं जा पाया, वापस आया तो वही बोर्ड फिर से आया. अभी तो समझ आया ना, रास्ता बंद है. ये जो पहला बोर्ड है वो मेरी बातें हैं. हाथ धोओ, मास्क पहनो, सलामत अंतर रखो, वो हैंड रब क्या है, चलना रखो, हंसते रहो, ऑयल कम खाइए. ऑयल, एक ऑयल की बात में रह गई, पर पर्सन 20 ml ऑयल पर पर्सन पर डे, या 600 ml पर पर्सन पर मंथ. सबके घर में यदि 20 ml का वो जो मेजरमेंट कार्ड आता है, यदि वो लेके आएंगे तो जितने लोग आपके घर में हैं, 5 लोग हैं तो 100 ml आपका ऑयल यूज होना चाहिए. 2 मेहमान आ गए, 20 ml उसका ऐड कर दो, जितने मेहमान है उसका. पर जितना ऑयल कम करेंगे इतना तंदुरुस्ती रहेगी. तो ये सब बातें मैंने बताई. तो ये बोर्ड है वो ऋषि की बात है. ये ऋषियों, हमारे जीवन में ऋषियों की बहुत बातें होती है. हम ये जाते हैं, खड्डा देखते हैं, वापस आते हैं और देखते हैं, उसको अनुभूति बोलते हैं. ये कोविड महामारी या भविष्य में कोई महामारी आए तो सरकारी गाइडलाइन को सुनिए, अपनी होशियारी नहीं करनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. दशविदानिया, फिर मिलते रहेंगे. आज अगस्त का महीना चल रहा है और शांति शांति का नारा हमने बहुत कहा. आज के बाद हम बोलेंगे ओम क्रांति क्रांति क्रांति. हमारे विचारों में क्रांति, हमारी समझ में क्रांति, हमारी सेवा भावना के लिए क्रांति, और जितना भी जीवन दिया है हम किस तरह से राष्ट्र के उत्थान में हमारा जीवन लगाए, उस बात को अपने दिल में धरे. उसी प्रार्थना के साथ सभी सुनने वाले सभी के दिल में बैठा हुआ उनके इष्ट देव को वंदन करके मैं मेरी बात को विराम करता हूँ. Thank you very much, sir.
हेलो हेलो, am I audible? हाँ मैं Hello. मैं सुना Yes, sir, मैं you are निकल गया। audible. Yeah, थैंक यू उपाध्याय सर। हम जानते हैं कि आपने कोविड के दरमियान बहुत ही ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक आपको भी कोविड हुआ था, और उसके बाद भी आपने कोविड के बाद भी इमीडिएटली आपने अपना ड्यूटी ज्वाइन करके एक एक एग्जांपल सेट किया था, एंड एक बहुत ही निस्वार्थ भाव से आपने बहुत बड़ी सेवा की है सर। और आपका जो आज का लेक्चर था उसमें आपने जो काम किया, आपने जीवन में जो भी काम किया है उसका एक सच्चाई सुनाई दे रही थी, एंड आई थिंक it came from bottom of your heart, sir, and Thank I you. think it touched all of us. Yeah, it touched all of us, and सर हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, एनएसएस में भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी कोविड के दरमियान एनएसएस एलडीसी के बच्चों ने बहुत ही बढ़िया काम किया था। लॉकडाउन में हमारे बच्चे एक्चुअली ऑन फील्ड काम कर रहे थे सर, ऑन फील्ड, एंड विच वाज रियली अमेजिंग। और हमारा सबसे बढ़िया चीज ये रहा कि किसी भी बच्चे को कोविड नहीं लगा सर। लॉकडाउन में जो काम किया वो ऊपर वाले की आप दुआ गिने कुछ भी कोई अच्छे काम के लिए कुछ हम करते हैं अच्छा काम, तो आई थिंक वो ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। तो वी वर्क विद द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उस टाइम, और बहुत ही मतलब 2.5 महीना बहुत ही रिगरस काम एनएसएस के बच्चों ने किया था। सो डेफिनेटली यू विल फील प्राउड कि ये बच्चे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर मैं एक्सीलेंट मौका है इसका यस सर जिन्होंने कोविड में काम किया है, सभी बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सभी के माँ पिताजी और उनके गुरुओं को खास सबको मैं प्रणाम करता यस हूँ, एब्सोल्युटली और आई एम थैंकफुल ऑन Yes, बिहाफ sir. ऑफ गवर्नमेंट ऑफ Yes, sir. गुजरात आल्सो। जी एंड सर हमने जो बच्चों को बुलाया था वो पेरेंट की कंसर्न और बच्चों ने फील्ड पे काम किया। सो थैंक्स टू ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इसी टफ टाइम में दूसरे की सेवा के लिए भेजा। तो इट वाज रियली अमेजिंग सर। या सर मैं आपको एक बहुत बढ़िया काम जो किया था एनएस वॉलंटियर ने वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सर ऐसा हुआ कि हमारा ड्यूरिंग कोविड हमारा एक एनएसएस वॉलंटियर था, उनके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए। 10 दिन के बाद उनके फादर भी एक्सपायर हो गए, एंड और 10 दिन के बाद वो हमारा एनएसएस वॉलंटियर वो भी शॉक में चला गया सर। और इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर द होल एनएसएस यूनिट सर। 3 लोग 20 दिन के समय में वो चले गए थे, और उस टाइम एनएसएस वॉलंटियर्स ऑफ एलडीसी उन्होंने वो कुछ ऐसा सोचा कि ये जो परेशानी हुई तो हम क्या कर सकते हैं, और उसी टाइम एक बहुत मतलब पोर्टल एक तैयार किया था, लाइव पोर्टल, कि जिसमें आपको जो ड्यूरिंग सेकेंड वेव था तब ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, हॉस्पिटल कहाँ है किसी को पता नहीं चल रहा था, वैकेंसी है या नहीं। उस टाइम एक लाइव पोर्टल बनाया था सर, और उसी में ऑक्सीजन सिलेंडर आपको कहाँ से मिलेगा उसका करेक्ट इन्फॉर्मेशन वो आप वहां पे डायल करोगे तो वहां आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा ही मिलेगा। हॉस्पिटल में जगह है तो वो पूरा लोकेशन आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी है। उस प्रकार का जैसे प्लाज्मा चाहिए या कुछ भी आपको मतलब आपको टिफिन सर्विस चाहिए, तो गुजरात एमपी और महाराष्ट्र के लिए हमने बनाया था ये पोर्टल, और करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों ने उसका फायदा किया था सर। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो थे उन्होंने अपना स्किल यूज करके ये पोर्टल बनाया था, और जो हमारे ऋतिक करिया करके हमारा एक वॉलंटियर था उसकी याद में ये पूरा डेडिकेट किया गया था सर। सो आई थिंक आपने जो एग्जांपल बोला वो हम फॉलो करना चाहते हैं और करते रहेंगे सर। वो एनएसएस इज डूइंग रियली गुड जॉब, एनएसएस वॉलंटियर्स आर डूइंग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, और हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते रहेंगे सर। सर थैंक यू वेरी मच सर, आज का आपका सेशंस बिकॉज हम जानते हैं आपको पर्सनली और आपने क्या काम किया वो भी हम जानते हैं। सो बेसिकली वो आप हमारे लिए एक एग्जांपल हो सर। सो thank you sir for sparing your valuable time to discuss your experience under this pandemic situation sir. Thank you. Any questions are there or any
Any participant has to. Yes, sir. Lakshya Yes. Pasha. The forum is open for the questions and answer session. Please, if you have any questions, please ask. Participants Deepa? may raise hand if you have any wish to interact. Mic is enabled. Participants. नया नंबर लिख लीजिए. Yes, sir. कोई भगवान जरूरत न पड़े मेरी, पर 98253 62 98, फिर से बोल रहा हूँ 98253 62253. मैं सीरस में अहमदाबाद में हूँ, अभी राजकोट से बातें कर रहा हूँ. भटकती आत्मा हूँ, यदि मैं फोन नहीं उठाता हूँ तो कई काम में हूँ, तो जैसे फ्री होंगे आपसे बात करूंगा, ये वादा रहा. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir, for NFS wonderful बहुत अच्छा काम lecture, कर रहा है. and it has been really सॉरी, अब बोलिए. enjoyable sessions. थैंक यू. Yes, sir. हाँ sir. मैं लॉग आउट हो सकता हूँ? हाँ sir. Thank you very much. Yes, sir. Please. नमस्कार sir. नमस्कार. नमस्कार. Participants, please join for the next meeting. After talking to Sir Murthy sir, we have a great session from Dr. CVR Murthy sir. Name itself is states everything. So welcome to next session. Please join soon for the next meeting. Thank you, and be ready with your cameras for photo.